स्टार्ट कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली लीव हो जाएगा, चालू हो जाएगा। Okay, so in yesterday's session we started with the mobile IP. Okay, we started with this mobile IP topic, and we came to know about the purpose of this mobile IP and what was the problem. Actually, we also saw that problem that we are able to before 10, 15, 20 years ago. Okay, so we used to access the internet at our home because it was configured for our desktop, for it was configured for our devices, whatever devices we were using at that time. We were not using our ancestors were using those devices. So those devices were like using the internet. We used to have the we used to access the internet on those devices very easily. Okay, but when we come out of that particular location, we go far away from that particular location, or even we come out of the home, then we will not be able to access the internet. Not a single bit. Okay, so it was the biggest problem. Okay, so we came to know with the problem that why not use mobile computer outside. Okay, if you are having any device, then why you cannot use the internet, why you cannot access the internet outside the home. Okay, so it was the biggest question at that time. Okay, regarding this one. So people think, many people we think about that particular problem, and they came up with multiple solutions we discussed yesterday. Okay, they came up with the first solution, that was the quick solution. It was the DHCP, that is dynamic host configuration protocol. They made some arrangement and all that, but it didn't work. Okay, and if it didn't work, then few people came up with the second solution, that was the DNS. Okay, that is domain name system, some मैपिंग लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस को मैप करके कुछ तो उन लोग ने अरेंजमेंट करने की कोशिश की, बट इट डिडंट वर्क. ओके, even the quick solution tool did not work. Then a few people came up with the third solution, that was a routing approach. Okay, so we can change the routing path. Okay, we can change the routing path. We are getting, or we are accessing the internet at our home location. Okay, so what we'll do, we'll change the path in the routing table, and then we'll go to the another location. But कितना change करेंगे? For example, right now I'm in Panvel. I'm going to Nerul. I'm going to Nerul, so I'll change the path. Okay, but if there's a requirement that I have to go to the Mumbai, okay, मुझे VT जाना है. Okay, if I'll go to Mumbai, then again I have to change the routing table में जो path है वो change करना पड़ेगा. So इतना सारा change आप कैसे कर पाओगे? So it is not possible to change the path every time you are moving from your current location. Okay, so फिर एंड यू कैन नॉट रिस्क दैट पर्टिकुलर राउटिंग टेबल. राउटर के टेबल के साथ में ज़्यादा छेड़खानी नहीं कर सकते, बिकॉज इट ऑटोमेटिकली मेंटेन्स ऑल द टेबल, सारी एंट्री को खुद मैनेज करते हैं. सो इट वाज आल्सो नॉट पॉसिबल. तो पीपल केम अप, ये तो सिर्फ तीन सोल्यूशन आपको बताने के लिए कि हाउ द what was the level of that particular problem, how severe that problem was. But still the people came up with multiple solution to this solution 1, solution 2, and solution 3. But all solution, any of the solution did not work. Okay, so after that few people worked on the standard or some mechanism, some way out. Okay, so they came up with the solution, और उसका उन लोगों ने जो नाम रखा वो रखा था मोबाइल आईपी. ओके, सो ऐसा आईपी जो कि आप उसको ऑन द मूव यूज कर सकते हैं. सो मोबाइल आईपी इन लोगों ने बेहतर नाम रखा. एंड सेवरल रिक्वायरमेंट है हमारे पास, बहुत सारे कुछ रिक्वायरमेंट्स थे, वो रिक्वायरमेंट को हमारे मोबाइल आईपी फुलफिल करना चाहिए. वी सॉ दोज रिक्वायरमेंट्स आल्सो. आउट ऑफ दोज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट वाज द कंपैटिबिलिटी. ओके, सो कंपैटिबिलिटी इशू नहीं आना चाहिए. इफ यू आर एबल टू एक्सेस द इंटरनेट एट योर होम विथ योर फेवरेट ब्राउजर, Chrome or Firefox or Safari or whatever browser you're using, so you must be able to use the internet in your device in which you are having the same browser. तो मुझे ब्राउज़र ना ही मुझे एप्लीकेशन चेंज करने की ज़रूरत पड़ना चाहिए, ना ही मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करने की ज़रूरत पड़ना चाहिए, ना ही मुझे सर्विस प्रोवाइडर चेंज करने की ज़रूरत पड़ना चाहिए, कुछ नहीं. ऑल मस्ट बी कंपैटिबल विद द एग्जिस्टिंग वन. ओके, मेरे पास में एयरटेल है, एयरटेल पे यूज़ करूँगा. मेरे पास में ब्लैकबेरी है, ब्लैकबेरी पे यूज़ करूँगा. मेरे पास में जो ब्राउज़र है वो फायरफॉक्स है, फायरफॉक्स पे ही यूज़ करूँगा. Okay, so it must be compatible with all the application, operating system, and all that.
ठीक है। तो ये इट वाज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट कि हमारा मोबाइल आईपी मस्ट बी दिस वन, मतलब कि इट मस्ट बी कंपैटिबल। सेकंड वाज ट्रांसपेरेंसी। आपको ट्रांसपेरेंसी के बारे में पता है। सो ऑल द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन द रिक्वायर्ड द इंफॉर्मेशन वी शुड नॉट बी we cannot reveal those information to the the lower layer, तो उनको नहीं दिखना चाहिए, विजिबल होना चाहिए। और एफिशिएंसी एग्जिस्टिंग सिस्टम को कोई मतलब कि रिस्क नहीं आना चाहिए। जो एग्जिस्टिंग सिस्टम हमारा भाई घर पे बैठ के तो यूज़ कर पा रहे हैं ना अभी, तो वी हैव द एग्जिस्टिंग सिस्टम। तो एग्जिस्टिंग सिस्टम को कोई रिस्क नहीं होना चाहिए, उसकी एफिशिएंसी में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। वरना मालूम पड़ा आपने कुछ न्यू मॉड्यूल मोबाइल आईपी के नाम पे ऐड कर दिए, एंड आफ्टर एडिंग दैट पर्टिकुलर मोबाइल आईपी module or component in the existing network system, it is doing some कुछ तो अलग ही हो रहा है। It is generating number of messages, okay, it is generating, and the network is getting flooded with number of messages, okay. What will happen in that particular result? The efficiency of the existing system will be degrade। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, efficiency must be maintained, should have to be maintained। Scalable system is scalable. I told you yesterday only that there is now this is going to be very large system, okay, because all the things we can say each and every appliance is going to be IP enabled। So अगर IP enabled होगा तो obviously all are going to use the internet, so everything works on the internet। तो हमारा system बहुत scalable है, बहुत vast होने वाला है। ये तो आज बहुत सालों पहले बोला है। तो जब होने वाला है तो योर मोबाइल आईपी मस्ट हैव द कैपेबिलिटी सो दैट के इट विल वर्क इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन आल्सो। कि ऐसा नहीं भाई कि अभी मैक्सिमम 10,000 मैक्सिमम 1 लाख डिवाइसेस सपोर्ट करेगा मोबाइल आईपी, उसके आगे नहीं कर सकता। इट शुड नॉट बी लाइक दैट, ठीक है। इट मस्ट बी स्केलेबल। फिर उसके बाद में सिक्योरिटी का पार्ट आपको पता है, ठीक है। So we came up with the goal of this mobile IP was that the goal of the mobile IP can be summarized as supporting end system mobility। Supporting end system, for example, I have mobile phone, I'm the end system, okay। I'm having a laptop and I'm using it outside in the train, in the bus, in the car. I'm using that particular laptop. Okay, so I'm the end system. Okay, so supporting end system mobility. So end system को support करना चाहिए in terms of mobility while maintaining the scalability. Okay, while maintaining the scalability। चलो मोर नंबर ऑफ पीपल, हो सकता है लाख में से कुछ लोग घर पे बैठ के यूज़ कर रहे हो, कुछ लोग ऑन द मूव यूज़ कर रहे हो, तो स्केलेबल होना चाहिए। वाइल मेंटेनिंग द स्केलेबिलिटी एफिशिएंसी, एफिशिएंट भी होना चाहिए, एंड कंपैटिबिलिटी। सबको मतलब इन टर्म्स ऑफ प्लेटफॉर्म, इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इन टर्म्स ऑफ एनएसपी, सारी चीज़ों में कंपैटिबल भी होना चाहिए। एंड कंपैटिबिलिटी इन ऑल रिस्पेक्ट विद एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, ओके। तो जो कुछ एग्जिस्टिंग इंफ्रा है उसी एग्जिस्टिंग इंफ्रा में ही आपको काम करना है, कुछ और नहीं, ठीक है। So the goal of the mobile IP can be summarized as mobility, supporting end system mobility while maintaining scalability, efficiency, and compatibility in all respect with the existing applications and internet protocols। Okay, so you need to remember this particular goal exactly, ठीक है। जैसा है वैसे आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। Okay, now we have to understand lot of terms, or we can say entities and terminologies, okay। They all are related with the mobile IP only, okay। So let us understand with the help of first drawing, okay। We'll draw a few things, okay। So we have, okay, अपन यहाँ देखते हैं, we have multiple entities over here, like we have a correspondent node, we have home network, we have foreign network, we have we have home agent, we have foreign agent, we have care of address, okay। तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। वो डायग्राम हम देखेंगे, एक्चुअली डायग्राम भी आने वाला है, उसमें सोचा डायग्राम अलग से आपको बना के बताता हूँ, लेकिन सोचा डायग्राम तो है ही, फिर जबरदस्ती का ड्रॉ भी करें। स्पेलिंग ओके, चलो ठीक है।
Okay, so these are the entities, or we can say terminologies we have to, we have to understand, because in order to understand the further concept, okay. So we have IP पैकेट डिलीवरी, एक IP का पैकेट जो है ना, तो ऑन द मूव कैसे डिलीवर होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं हूँ, ठीक है, और मैं जिसको सेंड कर रहा हूँ, the person to whom I'm sending the message is on the move, okay, he's traveling, okay, she's traveling, okay. So my packet will goes to the home network first. मेरा पैकेट कहाँ जाना है, सबसे पहले होम नेटवर्क में, बिकॉज हमारे पास तो एड्रेस कहाँ का है भाई, होम का है, ठीक है। मेरा पैकेट पहले होम पे जाएगा, लेकिन जब पता चलेगा भाई ये तो घर पे है नहीं, सो व्हाट इट इज गोइंग टू डू, इट इज गोइंग टू टेक नाउ, विल टेक द एड्रेस, पूछेगा आसपास से भाई कहाँ गया ये। तो सब लोग पूछते हैं ना, कहीं जाते थे भाई कहाँ गए, तो भाई गए आधे घंटे में आएंगे, या फिर ये अभी गए थोड़ा दूर है, या फिर ये लोकेशन पे गए। तो ऐसे हम लोग फिर जाते हैं, फिर आपका जो पैकेट है बराबर उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना चाहिए, बिकॉज एनी हाउ आपका पैकेट पहुंचना है आपके डेस्टिनेशन को, जो कि अभी फिलहाल बस में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। सो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो उस वक्त में कंसिडर करना पड़ी थी। आप सोचो कितना बड़ा चैलेंज है, how big a challenge is that you have to deliver a packet which is on the move, जो कि ट्रैवलिंग कर रहा है, जो कि किसी अननोन लोकेशन पे है। तो आपको पूरा ट्रैक रख के उस पर्टिकुलर बंदे तक उस पैकेट को पहुंचाना आपके मोबाइल आईपी का काम है, ओके। So let us understand that these terms which are going to use further. First is the mobile node, okay, the node or the terminal which is on the move, ऐसा बंदा, ऐसा नोड जो कि ट्रैवलिंग कर रहा है या एक लोकेशन दूसरी लोकेशन पे जा रहा है, ठीक है। ऐसे नोड को हम लोग मोबाइल नोड बोलते हैं। Second is the correspondent node. The correspondent node is the one. The correspondent node is the one, okay, who is communicating with the mobile node. अब जाहिर बात है, मोबाइल नोड इज मूविंग, ओके, सो देयर मस्ट बी वन पार्टनर, और वी कैन से कम्युनिकेशन पार्टनर, कम्युनिकेशन पार्टी जिसके साथ में बात करेगा, बिकॉज कम्युनिकेशन वो अपने अपने में थोड़ी करेगा मोबाइल नोड। देयर मस्ट बी a partner, or we can say the party to whom he is communicating, ठीक है। सो मोबाइल नोड के साथ में बात करने वाला भी तो कोई चाहिए, तो उसके लिए दूसरा नोड है जिसका नाम है करस्पॉन्डेंट नोड, ओके, द सेकंड। थर्ड वन है होम नेटवर्क। द थर्ड टर्म इज होम नेटवर्क, मीन्स आपके मोबाइल नोड का, आई एम टॉकिंग अबाउट द मोबाइल नोड, ओके। आपके मोबाइल नोड का द लोकेशन वेयर ही हैज रजिस्टर्ड हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ओके, एज द होम लोकेशन, तो वो उसका होम नेटवर्क कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद में फॉरेन नेटवर्क, आपका मोबाइल नोड विल डू वन थिंग, ओके, व्हेन ही और शी इज ट्रैवलिंग, व्हेन दैट पर्टिकुलर, मैं इसको बोलूंगा 18 बोलो, when your mobile node is traveling from your home location to any other location, when your mobile node is traveling from its home location to any other location, that any other location is nothing but the foreign network, ठीक है। अपने नेटवर्क को छोड़ के बाहर का जो भी नेटवर्क में वो गया, so that network will be termed as foreign network, ठीक है। मतलब मोबाइल नोड के रिगार्ड्स में वो जो लोकेशन है वो आपका फॉरेन नेटवर्क बन जाएगा, ठीक है। होम ग्राउंड बोलते हैं ना, आपका होम ग्राउंड है और फॉरेन ग्राउंड है। तो होम ग्राउंड पे आदमी अच्छा खेलता है, फॉरेन ग्राउंड के अंदर जाके गड़बड़ा जाता है। फॉरेन एजेंट, अब फॉरेन एजेंट के अंदर इसको फॉरेन एजेंट जो है तो आपका फॉरेन नेटवर्क में रहेगा, ऑब्वियसली तो क्लियर है। So foreign agent will be present in the foreign network. Okay, so there must be any agent, okay, any person to whom your mobile node will contact. ठीक है, तो वो रहेगा आपका फॉरेन एजेंट। और फॉरेन एजेंट के पास में ना एक एड्रेस रहेगी, ठीक है, दैट इज द केयर ऑफ एड्रेस। आपको पता है बचपन में आज से ना 10-15 साल पहले जब मोबाइल उतना था ही नहीं, मोबाइल था ही नहीं बेसिकली, तो व्हाट वी यूज्ड टू डू, तो व्हाट वी यूज टू डू, हम अपने पड़ोसी का, किसी का MTNL BSNL का घर का नंबर उसको दे के रखते थे, जिसको भी कॉल करना है। तो फिर हमको कोई बुलाने आता कि आपका फ़ोन आया, फिर हम लोग जाते थे और जाके फ़ोन पे बात करते थे। तो दैट्स अ केयर ऑफ एड्रेस। तो वैसे ही केयर ऑफ एड्रेस, मैंने पैकेट भेजा, ओके, आई एम द करस्पॉन्डेंट नोड, आई एम सेंडिंग द डेटा टू माई मोबाइल नोड, बट माई मोबाइल नोड वॉज नॉट प्रेजेंट एट इट्स होम लोकेशन, होम ग्राउंड पे नहीं प्रेजेंट है। तो जब होम ग्राउंड पे नहीं है, होम नेटवर्क में नहीं है, so it will be directed to the, it will be directed to the फॉरेन नेटवर्क। तो फॉरेन नेटवर्क में जहाँ पर ये जाएगा वो किसके पास में जाएगा, वो जाएगा फॉरेन एजेंट के पास में। और फॉरेन एजेंट बोले तो हमारा क्या है, उस मतलब उस बंदे का केयर ऑफ एड्रेस है। तो हमारा जो पैकेट है, हमारा जो डेटा है, दैट विल गोज टू द
दैट विल गोज ऑन द केयर ऑफ एड्रेस, दैट इज COA, जो कि हमारा फॉरेन एजेंट से होके फिर हमारे मोबाइल नोड को मिलेगा। दैट विल सी द डायग्राम, डायग्राम देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, okay, just look at the diagram now. So this is our home network. Okay, so this is my home network, and okay, so this is my home network, this is my correspondent node, जो कि बंदा आपको कांटेक्ट करेगा। ठीक है, सो समझ लो, इमेजिन कर लो, मैं आपको थोड़ा स्टोरी लाइन में लेके चल रहा हूँ। यू आर मोबाइल नोड, ओके, एंड यू आर, पहले ज़माने की बात है, आप यहाँ पे रहते थे। ठीक है, आपका होम ग्राउंड है, दिस इज योर होम नेटवर्क। ओके, सो द मोबाइल नोड was present in this home network. Okay, cause of some reason and cause of some requirement, he moved he moved to the foreign network। ठीक है, अभी फॉरेन नेटवर्क जो है आपका, इट कैन बी एनी लोकेशन। मैं अभी यहाँ पर फॉर एग्जांपल आई मीन पनवेल, ओके, और कॉज ऑफ सम रीजन आई ट्रैवल टू वीटी, मैं वीटी चला गया या एसकेएसटी चला गया थोड़ा कुछ काम के लिए। ठीक है, तो जब मैं लोकेशन चेंज किया मैंने, या मैं अपने होम ग्राउंड से बाहर आया, होम लोकेशन से बाहर आया, सो व्हाट विल हैपन, सो दैट जो मैं वीटी में चला जाऊंगा, दैट वीटी का एरिया विल बी द फॉरेन नेटवर्क फॉर मी। that is clear for you? Okay, so I was staying in the home network, cause of some reason, cause of some requirement, I moved to the foreign network। ठीक है, तो मैं चलो यहाँ पर आ गया, मोबाइल नोड इज प्रेजेंट राइट नाउ इन दिस सर्कल। ओके, ये सर्कल दिख रहा है। ओके, when it comes out of the home network, so we have a router, okay, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका होम एजेंट। ओके, जो आपका होम एजेंट क्या करेगा, इट विल बी हैविंग ऑल द इंफॉर्मेशन। आपको पता है घर के बाहर या नुक्कड़ पर जो है ना, कुछ मतलब एजेंट पीपल बैठते हैं, तो दे आर द होम एजेंट बेसिकली। आप किसी का पता पूछो, आप रास्ते से जाओगे और फिर बोलो भाई आपने इसको देखा है, तो हमको सबकी इन्फॉर्मेशन, तो उनका एक पूरा राउटिंग टेबल मेंटेन होता है वो एजेंट लोगों का। सो दे यूज टू मेंटेन इन्फॉर्मेशन ऑफ, हाँ वो यहाँ इधर गया, वो भाई साहब इधर गए, वो इधर गया, सब इन्फॉर्मेशन होती है, वो नुक्कड़ पे बैठे रहते हैं। तो दे आर द होम एजेंट फॉर अस। ओके, सो हमारा जो होम नेटवर्क है, सो द राउटर इज कनेक्टेड, बेसिकली हमारा एक लैन है। ठीक है, ये हमारा एक नेटवर्क है। सो माई राउटर इज ऑल्सो कनेक्टेड, माई राउटर इज दैट इज माई होम एजेंट इज कनेक्टेड टू माई होम नेटवर्क। ऑब्वियसली मेरा होम एजेंट किसको कनेक्ट रहेगा, होम नेटवर्क को। मेरा फॉरेन एजेंट FA will be connected to whom, my foreign network। ओके, ये भी क्लियर है। तो ये मेरा होम नेटवर्क, ये मेरा होम एजेंट, ये मेरा फॉरेन नेटवर्क, ये मेरा फॉरेन एजेंट। ये जो एड्रेस यहाँ पे रहेगा, ये एड्रेस कौन सा रहेगा, ये आपका केयर ऑफ एड्रेस रहेगा। ठीक है, एंड उसके बाद में मेरा मोबाइल नोड यहाँ पे घूम रहा है, अपना होम नेटवर्क छोड़ के इट इज मूविंग इन द फॉरेन नेटवर्क। ओके, देन ये हमारा करस्पॉन्डिंग नोड है। ठीक है, ये भाई साहब वो है जो कि हमारे मोबाइल नोड को कुछ डेटा सेंड करना चाहते हैं या कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ठीक है, so my correspondent node wants to communicate or wants to transmit the data to the mobile node, but my mobile node is currently not present in the home network, it is currently present in the foreign network, but ये मुझे नहीं पता है। I am the correspondent node right now. Now just मैं भी party change कर रहा हूँ। I am the correspondent node. Okay, I am the correspondent node, and I don't know that my mobile node is not present in the home network। Ideally कहाँ होना चाहिए मेरे मोबाइल नोड को, my mobile node must be present, should be present in the home network में होना चाहिए, but my mobile node is not present। ये इन्फॉर्मेशन वो मुझे डिस्क्लोज कर रहा है, नहीं बता रहा है। मेरा जो मोबाइल IP जो मॉड्यूल है, it is showing me that information, that भाई your mobile node is not present in the home location, but मैं तेरा काम करूँगा, मैं सर्च करता हूँ उसको, मैं वो किधर है मैं जाके देखता हूँ, और तेरा पार्सल तो मैं पहुँचा के रहूँगा। ऐसा आपको कोई चीज़ कभी इन्फॉर्मेशन आई वो आपको बताएंगे नहीं। दिस इज द ट्रांसपेरेंसी दे आर मेंटेनिंग फॉर द करस्पॉन्डेंट नोड एंड फॉर द मोबाइल। इन्हें पता भी नहीं चलेगा लेकिन आपका डेटा बराबर पहुँचेगा। ओके, सो योर करस्पॉन्डेंट नोड विल सेंड द डेटा। सो अब आइडियली किसे जाना चाहिए, व्हेन योर करस्पॉन्डेंट नोड, मतलब कि कोई भी कम्युनिकेशन पार्टी, so your correspondent node, the another node wants to send the data, wants to communicate with the mobile node, so ideally it must go from this way, इंटरनेट से होके 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 जाएगा भाई साहब हमारे होम एजेंट के पास में। ठीक है, बीच में राउटर खड़ा है, चौकीदार, तो खड़ा है कि फिर उसको बोलेगा कि भाई देख मैं उससे मिलने का है, मुझे डेटा उसको देने का है। होम एजेंट बोलेगा भाई साहब वो तो है नहीं, वो तो बाहर घूमने गए, फॉरेन ट्रिप पे गए। ठीक है, तो भाई साहब ये परेशान।
तो अब यहाँ से उसको डेटा मिल रहे हैं, यहाँ से वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि वो कौन से लोकेशन पे है, कौन से फॉरेन नेटवर्क में। योर होम एजेंट विल प्रोवाइड दैट इन्फॉर्मेशन। तो अंदर 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 जाने की बात ही नहीं, फिर जब है नहीं प्रेजेंट तो जाने की बात नहीं। तो आपका जो होम एजेंट है, इट विल गिव द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एंड दैट पैकेट विल बी फॉरवर्ड। अच्छा, अब यहाँ पे होगा इनकैप्सुलेशन। ये है आपकी गुफा है, इसको बोलते हैं हम लोग टनल। आगे एक कॉन्सेप्ट आएगा टनलिंग, तो आप लोग समझे, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है लेकिन बस समझ लीजिए। अगर पूरे कॉन्सेप्ट समझ गए तो मोबाइल आईपी आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज माय टनल, ये टनल जा रही है ना, यहाँ से यहाँ तक जा रही है टनल। तो फिर वो डेटा को क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनकैप्सुलेशन होगा। वाई इनकैप्सुलेशन विल बी डन, वाई इनकैप्सुलेशन विल बी डन कॉज यहाँ पर आपका सोर्स और डेस्टिनेशन चेंज हो रहा है। यहाँ से पैकेट निकला था तो सोर्स क्या था, सीएन था, यानी कि करस्पॉन्डेंट नोड, और डेस्टिनेशन क्या था, होम एजेंट का था, ठीक है। सोर्स डेस्टिनेशन ये था, बट यहाँ पर क्या होगा, अब भाई सोर्स ये बन जाएगा और डेस्टिनेशन ये बन जाएगा, बिकॉज नाउ द सिचुएशन इज चेंज, ठीक है। तो फिर क्या होगा, उसका इनकैप्सुलेशन होगा। तो जो पैकेट इन्होंने भेजा था वो पैकेट को वापस एक दूसरे पैकेट में डालेंगे और उसके ऊपर जो है ना एक वो लगाएंगे, क्या लगाएंगे उसके ऊपर, उसके ऊपर जो है ना हेडर लगाएंगे, यानी कि इट कंटेन्स द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो जब उस पर्टिकुलर पैकेट पे, जो कि पैकेट यहाँ से आया था वो आपके होम एजेंट के पास में, दैट विल बी इनकैप्सुलेटेड एंड विल पुट इनसाइड द टनल। तो इनकैप्सुलेशन जब होगा तो जो पैकेट आया है, दैट पैकेट विल बी रैप्ड इनसाइड द बॉक्स, ओके। अभी आपका मिला, उसको और दूसरे एक बड़े बॉक्स में रखेंगे, ओके। और उसके ऊपर आप लगाएंगे सोर्स और डेस्टिनेशन। अब यहाँ पर सोर्स कौन हो जाएगा आपका, योर सोर्स विल बी होम एजेंट एंड व्हाट विल बी योर डेस्टिनेशन, योर डेस्टिनेशन विल बी द योर फॉरेन एजेंट, ओके। तो यहाँ पर हो गया सोर्स आपका होम एजेंट और डेस्टिनेशन हो गया आपका फॉरेन एजेंट, ठीक है। अब ये पैकेट आपका चलेगा चलेगा चलेगा, फिर टनल में से जाएगा और मिल जाएगा केयर ऑफ एड्रेस पे, ठीक है। सो व्हेन योर फॉरेन एजेंट विल रिसीव इट, इट विल डीकैप्सुलेट इट, ओके, इट विल डीकैप्सुलेट द पैकेट। उसके ऊपर का जो ये वाला बॉक्स है, ये वाला निकाल देगा, तो ये वाला बॉक्स उसने निकाल दिया। आफ्टर रिमूविंग दिस बॉक्स व्हाट विल, हमको ओरिजिनल पैकेट मिलेगा जो कि यहाँ से आया था, ठीक है। तो मैं आपको पूरा आईपी पैकेट डिलीवरी एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू मैं आपको मतलब के एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, तो इसको समझ लो, फिर उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। सो योर पैकेट विल बी डीकैप्सुलेटेड बाय द फॉरेन एजेंट। फॉरेन एजेंट ये वाला पैकेट को डीकैप्सुलेट करेगा, इट विल गेट दिस पैकेट, ठीक है, ये वाला पैकेट मिलेगा। उसमें जब चेक करेगा तो पता चला भाई डेस्टिनेशन कौन है, डेस्टिनेशन तो मोबाइल नोड है, उसके पास मोबाइल नोड प्रेजेंट है, हाँ मोबाइल नोड प्रेजेंट है। तो मोबाइल नोड जब प्रेजेंट है तो फिर क्या करेगा, उस पैकेट को मोबाइल नोड को फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर पैकेट, योर आईपी पैकेट विल बी डिलीवर्ड टू द मोबाइल नोड, टू द node who is present in the foreign network. अच्छा, in the second case, if your mobile node is present in the home location only, if your mobile node is present in the home location, then कुछ तो फिर लफड़ा ही नहीं है। Your packets will be directly forwarded to the home agent. Home agent will come to know, हाँ भी present है ऑफिस में है, चलो जाओ, आपका पैकेट विल बी डिलीवर्ड टू द होम टू द मोबाइल नोड, ओके। बट इफ इट इज नॉट प्रेजेंट देन इतना सब कार्यक्रम करना पड़ेगा, यू कैन सी ऑन द स्लाइड। समझ में आ रहा है आप लोग को, ये अगर समझ में आया ना तो फिर आगे के आप लोग कॉन्सेप्ट आपके लिए एकदम सिंपल हो जाएंगे। प्लीज रिप्लाई मी एज पीपल आर गेटिंग दिस थिंग्स और नॉट, समझ में आ रहा है या नहीं, और शुड आई रिपीट दिस। मैं इसके लिए भी कुछ ज़्यादा अलग अलग वर्ड और बुक के वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अपनी अपनी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज जितना आप लोग ऐसे समझ जाएंगे एग्जाम में, आप लोग ऐसे भारी भारी टर्म्स यूज़ करके भी आप लोग लिख लेंगे एक बार रीड करने के बाद में, एक दो बार रीड करेंगे बुक से, यू विल गेट द टर्म एग्जैक्टली व्हाट इज टू बी यूज। इसके लिए मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्लेन यू ऑल द रिलेवेंट एंड व्हाट कैन से एंटिटीज ऑफ द टर्मिनोलॉजी जो यूज़ होती है, वो पहले हम लोगों ने बता दी। मोबाइल नोड, करस्पॉन्डेंट नोड, तो मोबाइल नोड जो कि घूम रहा है, करस्पॉन्डेंट नोड जो कि कम्युनिकेट करना चाहता है, होम एजेंट सॉरी होम नेटवर्क इन विच योर मोबाइल नोड हैज रजिस्टर्ड फर्स्ट, क्योंकि वो आपका होम एजेंट सॉरी होम नेटवर्क, उसके कनेक्टेड जो राउटर है वो आपका होम एजेंट। फॉरेन नेटवर्क ऐसा लोकेशन जहाँ पर आपका मोबाइल नोड घूमने गया है,
outside of the home network. Okay, that is your foreign network. फॉरेन नेटवर्क के जो कनेक्टेड जो राउटर है तो उसका नाम रहेगा फॉरेन एजेंट. फॉरेन एजेंट का जो एड्रेस है दैट इज द केयर ऑफ एड्रेस. दैट्स ऑल द टर्म्स, ऑल द एंटिटीज. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज टर्म्स एंड दिस प्रोसेस. लेट अस मूव अहेड. ये हमको इसका हम लोग को बार बार काम पड़ेगा. सॉरी, देखो ये मैंने एक्चुअली इसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन डाला हूँ. जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ऐसे एक्सप्लेन कर दिया उसकी मैंने डिटेल भी डाला हूँ. एज यू कैन सी the explanation of all the entities and terms what we are going to use in the IP packet. Okay, so mobile node क्या है आपका? Mobile node is an end system or router that can change its point of attachment to the internet using mobile IP. Okay, the person who can change the point of attachment. आज home agent के router को पकड़ा हुआ है, कल foreign agent के router को पकड़ा रहेगा, कल किसी और foreign agent को जाके attach होगा. So it can attach to multiple. क्योंकि आप जैसे जैसे आप move होंगे वैसे वैसे ही attachment change होता जाएगा. The mobile node keeps its IP address and can continuously communicate with any other system in the internet as long as the link layer connectivity is given. So basically आपके होम आप मूव करो कहीं पर भी, लेकिन आपके होम नेटवर्क के अंदर जो होम एजेंट है तो यू हैव टू बी कनेक्टेड विद दैट पर्टिकुलर होम एजेंट. ठीक है, इस होम एजेंट को, बिकॉज नाउ यू वर रजिस्टर्ड इन द होम नेटवर्क. तो इसके लिए आपका होम ग्राउंड है. ठीक है, तो इससे आपको कनेक्टेड रहना है. Your mobile nodes are not necessarily small devices such as laptop with antennas or mobile phones. A router on board an aircraft can be a powerful mobile node. तो जरूरी नहीं कि आप मोबाइल लेके घूम रहे हो तो ये आपका मोबाइल नोड है. आप लैपटॉप लेके घूम रहे हो तो ये आपका मोबाइल नोड है. हो सकता है आप एयरक्राफ्ट में घूम रहे हो और वहाँ पे वाईफाई राउटर वाईफाई एक्सेस हो और आप उसको यूज कर रहे हो. तो दैट कैन बी अ सिचुएशन ऑफ अ मोबाइल नोड. तो वो भी आपका मोबाइल नोड हो सकता है. ठीक है, तो इस जस्ट मोबाइल नोड का इंट्रोडक्शन. Then coming to the next one, that is the correspondent node. At least one partner is needed for communication. I told you that you must have one partner for communication. So that is the partner, that is the correspondent node is that partner who is going to communicate with that particular mobile node. The CN represent this partner for the mobile node. तो भाई CN उसका partner है. CN can be fixed or mobile node. हो सकता है CN मैं अपने डेस्कटॉप, मेन हमारा फोकस क्या है? मोबाइल नोड पे. मोबाइल नोड घूमना चाहिए यहाँ से वहाँ और एक्सेस करना चाहिए. आपका सीएन कहीं फिक्स हो जाए, कहीं घूमे, कुछ भी उससे हमको मतलब नहीं. ठीक है, तो योर करस्पॉन्डेंट नोड कैन बी फिक्स्ड और कैन बी अ मोबाइल नोड. ओके, थर्ड दैट इज होम लोकेशन, सॉरी होम नेटवर्क. ओके, तो द होम नेटवर्क इज द सबनेट ऑफ द मोबाइल नोड बिलोंग्स टू. इनिशियल रजिस्ट्रेशन कहाँ जिसका था, जिसको बिलोंग करता है, तो वो आपका होम नेटवर्क हो जाएगा. विद रिस्पेक्ट टू इट्स आईपी एड्रेस. यहाँ पर एक्चुअली तो ये एक ही स्टेटमेंट है लेकिन वो आपके नंबर पोलिटिंग आ. द होम नेटवर्क इज द सबनेट ऑफ द MN बिलोंग्स टू विद रिस्पेक्ट टू इट्स मोबाइल आईपी एड्रेस. तो बेसिकली आईपी एड्रेस जिस सबनेट का है वो उसका होम लोकेशन है. सिंपल है. नो मोबाइल आईपी सपोर्ट इज नीडेड विद इन द होम नेटवर्क. तो मोबाइल आईपी का सपोर्ट आपको चाहिए अगर आप होम ग्राउंड पर ही है, अगर आप होम नेटवर्क में है तो. अगर आप होम नेटवर्क में हैं तो आपको मोबाइल आईपी की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो सिंपल इसको भेजना रहेगा. यहाँ से जाएगा आपका डेटा, इंटरनेट से थ्रू होके जाएगा और होम एजेंट विल रिसीव इट एंड देन होम एजेंट विल फॉरवर्ड द डेटा टू द मोबाइल नोड विच इज प्रेजेंट और द नोड हू इज प्रेजेंट इन द होम नेटवर्क. ठीक है, तो होम नेटवर्क हो गया. देन आपका फॉरेन नेटवर्क. द फॉरेन नेटवर्क इज द current network the mobile node visits and which is not the home network. होम नेटवर्क के बाहर छोड़ के आपका मोबाइल नोड जहाँ भी घूम रहा है वो फॉरेन एजेंट कहलाएंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. छोटे छोटे सिंपल टर्म्स हैं. फॉरेन एजेंट. ओके, the foreign agent can provide several services to the mobile node during the visit to the foreign trip पे जाएगा तो आपका foreign agent बहुत काम करता है आपके लिए. ठीक है,
जो बंदा वहाँ फॉरेन एजेंट के अंदर है, जो आपको असिस्ट कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है, दैट्स द फॉरेन एजेंट. The foreign agent can have the care of address. I told you that your foreign agent is going to keep the care of address. You can see over here, you have a you have a care of address, and on that particular address, your packets will be forwarded. Your packets will be forwarded. Okay. So that address is nothing but the foreign agent का address. तो foreign agent के address को ही care of address बोलते हैं. Okay. Then for अच्छा, the foreign agent can have the care of address acting as the tunnel endpoint, the tunnel endpoint and forwarding packets to the mobile node. Okay? तो जब आपके करस्पॉन्डेंट नोड ने जब पैकेट यहाँ से यहाँ पर भेजा, तो यहाँ से यहाँ पर आने के लिए पता है आपको एक टनल बनाई गई है, एक टनल बनाई गई है, एंड फ्रॉम दैट टनल ऑल द पैकेट्स विल बी फॉरवर्डेड टू द मोबाइल नोड हु आर प्रेजेंट इन द फॉरेन नेटवर्क. तो ऐसे जितने बंदे हैं, ऐसे जितने लोग हैं जो कि भाग भाग के फॉरेन नेटवर्क में चले गए हैं, तो उन तक डेटा कम्युनिकेशन को पहुंचाने के लिए वी हैव अ टनल फ्रॉम द होम एजेंट, फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव होम एजेंट. तो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस मोबाइल नोड 1. ओके. ऐसे ही कितने सारे मोबाइल नोड रहेंगे जो कि अपने लोकेशन को छोड़ के दूसरे लोकेशन में घूम रहे हैं. ठीक है. सो द डायग्राम कैन बी वेरी बेस्ट. ओके. अब चलिए हम लोग बना नहीं सकते, वी आर जस्ट कंसिडरिंग द वन मोबाइल नोड एंड उसका डायग्राम हमने बनाए. ठीक है. So we have a tunnel, and from this tunnel all the packets will be forwarded from their respective home agents, from their respective home network to their respective foreign agent. Okay. तो यहाँ पर आपका पहुँच गया, और जिसका जो एड्रेस है, that address is nothing but the care of address. टनल का एंड पॉइंट है, ये भी क्लियर है. The foreign agent can be the default router for the mobile node. The foreign agent can be the default router for the mobile node. अब ये होता है कि जब एक बार पैकेट भेजा तो उसको हो सकता है कि उसके बाद में उसके राउटर्स में एंट्री हो गई हो क्या, आपके राउटर्स में एंट्री होंगी. जब राउटर्स में एंट्री होंगी, then they can send the packet, then they can send the packet directly to the foreign agent also. Foreign agents can also provide security services because they belong to the foreign network as opposed to the mobile. कुछ आ रहा है लगता है. Okay, I'm getting some messages. Okay, the next is care of address. Already opened है ना. The next is care of address COA. मैंने आपको एग्जांपल दिया था regarding the care of address. If you are not, if you don't have mobile phone, then we used to give the number of the neighbors, okay, so that the people who want to call me, who want to contact me, they can contact on the care of address. The same thing, the same concept applies over here also. The COA. The care of address defines the current location of the mobile node from an IP point of view. तो केयर ऑफ एड्रेस पे तभी तो पता चलेगा, और आपको केयर ऑफ एड्रेस कौन बताएगा, आपका होम एजेंट बताएगा. ऑल आईपी पैकेट्स सेंट टू द मोबाइल नोड आर डिलीवर्ड टू द केयर ऑफ एड्रेस, नॉट डायरेक्टली टू द आईपी एड्रेस ऑफ द मोबाइल नोड. ठीक है. तो जो भाई जो सारे के सारे जो पैकेट्स आने वाले हैं, विच आर कमिंग फ्रॉम दिस करस्पॉन्डेंट नोड टू द होम एजेंट, फिर होम एजेंट उनको चेक करके फिर कहाँ फॉरवर्ड करेगा, it will forward it to the care of address, not directly to the mobile node. मोबाइल नोड के पास डायरेक्टली फॉरवर्ड नहीं कर सकता, बिकॉज मोबाइल नोड कहाँ पर है, किस लोकेशन पे, उसका पता सिर्फ आपके फॉरेन एजेंट को है. ओके. So for that reason your packet will be forwarded on the care of address to the foreign agent. Okay. It will not forward directly to the mobile node. ठीक है, ध्यान से. उसके बाद में the packet delivery towards the mobile node is done using the tunnel as explained later. So we have a foreign agent COA and we have a co-located COA. So दो अलग-अलग care of address होते हैं. इतना बचा. The home agent provides several services for the mobile node and is located in the home network. Your home agent is the person. Your home agent is the one entity who is present in the home location. इन्हें के home network में present है. The tunnel for packets towards the mobile node start at the home agent. तो जो भाई टनल है, वो टनल आपकी होम एजेंट से शुरू होती है और फॉरेन एजेंट पे खत्म होती है. So the main communication which is going on,
In terms of mobile IP, the communication will be between these two, home agent and foreign agent. होम एजेंट मेंटेन्स द लोकेशन रजिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मेंटेन्स अ लोकेशन रजिस्ट्री दैट इज इट इज इन्फॉर्म ऑफ द मोबाइल नोड लोकेशन बाय द करंट सीओए। करंट सीओए के हिसाब से आपका होम एजेंट पता करेगा कि मेरा जो नोड है, मेरा जो पहले वाला जो नोड यहाँ का था, वो जाने के बाद जब वो अपनी लोकेशन जोड़ देगा तो कौन सा नोड बन जाएगा, आपका मोबाइल नोड बन जाएगा। ठीक है, there's a node who is moving, ओके। सो जब वो जाएगा तो उसकी लोकेशन की कहीं ना कहीं रजिस्टर होगा, उसमें उसकी लोकेशन मेंटेन होगी। ठीक है, जब तक वो मेंटेन करेंगे नहीं तब तक पता ही नहीं चलेगा। और हाउ द टनल विल बी फॉर्म, ओके, द टनल कैन बी फॉर्म इफ एंड ओनली इफ यू आर हैविंग द केयर ऑफ एड्रेस, ओके। तो ये हमारे होम एजेंट का कमाल है, जो कि उसका एड्रेस पता करके बराबर टनल को फॉर्म करेगा। So in this way, they are these all the terms like we are having, starting with the mobile node. Then तो यहीं पर देख लेते हैं। So we have a mobile node who is moving in the foreign network. This is the mobile node. We have the correspondent node who wants to contact with the mobile node. Second, the third is the home network in which your mobile node was initially present. Okay, you have a home network. Then the router which is attached with this home network will be called as home agent, okay. Then you have the foreign network, the network in which your mobile node is currently present, so ये वाला term. Then you have a foreign agent, the router which is connected with the foreign network is called as foreign agent, and the address of the foreign agent is nothing but the care of address, okay। ये 5-6 terms है, 2 3 4 5 6 7, 6-7 टर्म्स है कुछ। ये टर्म्स को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, याद रखना है। ठीक है, आई होप ऑल दीज टर्म्स आर क्लियर टू यू। कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछो, समझा है तो हाँ बोलो कि सर समझ रहा है। ठीक है, मुझे भी लगता है कि चलो ठीक है, फिर आप लोग सुन रहे हैं। यस सर। ठीक, थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। 12:45 हो गए, लेक्चर खत्म हो गया अपना। देखते कैन वी मूव अहेड। This is the IP packet delivery we have to start actually. Don't worry, we will start this IP packet delivery tomorrow only because this is very important. Whatever procedure I explained you earlier regarding a packet which was coming from this CN, as you can see, there is number one. You have number one, the corresponding node was transferring the data or was sending the data to the mobile node who is expected to be present in the home network. तो ये आपका पॉइंट नंबर वन। तो चला गया राउटर के पास में, बिकॉज बाहर बोला आपको मैंने सिक्योरिटी गार्ड है, so security guard will check by the person is not present, then what to do, then with the help of the tunnel your packets will be forwarded to the foreign agent। ठीक है, तो फॉरेन एजेंट को जब करेगा तो वो केयर ऑफ एड्रेस पे ट्रांसफर करेगा। यहाँ से फॉरेन एजेंट विल चेक एंड विल ट्रांसफर द पैकेट और द सिग्नल और द डेटा टू द मोबाइल नोड हु इज प्रेजेंट इन द फॉरेन नेटवर्क। उसके बाद में जब हो गया, ट्रांसफर हो गया, तो व्हाट इट विल डू, इट विल रिप्लाई। रिप्लाई भी तो आना है ना, when it will reply then reply will directly come to this particular button। ठीक है, जब हाँ ये भी इसमें आगे आगे चल के आप लोगों को समझ आएगा। अच्छा, इसको मिलने के बाद में जब मोबाइल नोड जब चेक करेगा, मोबाइल नोड when your mobile node will check the packet, then it will come to that is who is the source, the source is the correspondent node and the destination was me, okay। Now when it will send the acknowledgement, so instead of sending the acknowledgement to the foreign agent, then home agent, then home agent to route to the CN, यहाँ पे लंबा घूम के क्यों आना, जब मुझे पता है कि मेरा जो मेरा सोर्स है जिसने मुझे भेजा है, तो एक्नॉलेज मुझे किसको करना है, एक्नॉलेज भी मुझे किसको करना है, मुझे CN को करना है। So instead of sending the acknowledgement packet to the foreign agent and home agent and then CN, I will send directly to the CN। ठीक है, इंटरनेट है मेरे पास में, मैं तो डायरेक्टली सेंड कर सकता हूँ because I have that packet। So you are in your mobile IP,
in your mobile IP, your acknowledgement will be sent directly to the correspondent. Okay, तो ये हम लोग कल समझेंगे. That is the example network. Okay, तो चलो ठीक है. Okay, thank you so much. Let me stop the recording first. Adil